Santulan came about to eradicate the social evil of alcohol and drug addiction in society. Uh, it is based on a threefold program. The first aspect of the Santulan program is a 15 days in-house detox camp. The second aspect is vocational training, 60 to 90 days. And the third aspect of the program is getting employment for the participants. We believe that this helps them become responsible and productive members of the society. In the 15 days detox camp, we start the program with understanding the background of the participants and devising a treatment plan for them. The plans have to be individualized, mainly because people who come to us have varied backgrounds. Also, the pharmacological aspect depends on the person's drug of choice. For example, someone who is addicted to alcohol will have different medications prescribed to them, and someone who is addicted to opiate will be prescribed different medication. The initial few days go in withdrawal management. After that, the therapy module kicks in. We have group sessions, we have one-on-one counseling, we have a team of psychologists and a psychiatrist who have devised this program. It's mostly based on cognitive behavior therapies and skill building therapies. We have students, psychology students from colleges like Ferguson coming in to get practical experience with us. These students help us in taking case histories of the patients, and also it is a good way for the addicts and alcoholics to interact with people outside their normal realm of contact. In the cognitive behavior therapies, we help these people to challenge their belief system. We have Dr. Amod Botar as our psychiatrist, and he takes care of the psychotherapies as well as the medicine part of the program. Mr. Dujan Smart, he actually conceptualized the idea of Santulan, of free detox and vocational training, and we have a brilliant pair of psychologists in Susmita Katarki and Pallavi Bhargode who are helping us with this. The program is also great because it is absolutely free, so you don't have to pay any fees or enrollment charges. We had a lot of success with this program, mainly because it helps the participant get back on his feet, get his self-esteem levels up, because the vocational training after the 15 days camp helps him do that. Check their baggage before we take it, because sometimes they might smuggle in stuff. So that's why we check everything and then we let them in. If we find money, we make a note of it on a piece of paper and we will return it to them when they are going. If their family members are here at that time, then we will hand over the money in their family members.
Sai Bandar. First patient? Mahesh Madhukar. Something Mahesh. Okay. And what kind of questions you asked him? First we asked him where he stays and all of that. And then about his family, about whether he's married. So he was married, he had one son and one daughter. Okay. And about whether he has any siblings and all of that. Then We got him here. Okay. Yeah. He's liking it here. Yeah. Okay, he is liking it here. He never told that how many years he was taking, but he said it's increased a lot since the past few months. And he didn't tell us the reason why he started taking it. You asked him whether it was peer pressure? Yeah, peer pressure really started because of some family issues. Okay. And Slowly. Starts because of family issues. yeah, because of family issues. And when he exactly started it, Okay. he did stop in the middle because of some reason. And what was that reason? Okay. That's it. What reason for stopping? Yeah, what was the reason for stopping and starting it all over again? Even we asked if they ever stopped. He said since past 4 months it's becoming really worse. Like पहले कम था and अब बहुत ज़्यादा हो गया. So he's like मुझे अच्छा नहीं लग रहा. He's saying that it's having ill effects on his health. Okay. So he's not liking it. That's why he's coming. Okay. What did you all learn? Because tomorrow you are going to open posh clinics and treat patients. So today was your first patient ever. Yeah, most of them haven't interacted. Have you interacted with anyone? Interacted. Individually interacted. Yeah. Kind of? Yeah. Okay, so for those who was their first experience, how was it? Firstly, you can't be emotional when you're talking with these people. Okay, you can't be emotional. Do you feel that you need to give the patients confidence or you need? No, but just reinforce his belief that what Okay, he's doing is right. Okay, now for this example, reinforce his belief. Right now you don't know their belief systems. To reinforce their beliefs. This is what they're saying. And oh no, my god. But like giving him confidence that Okay. that Support this is them. gonna help. This is going to help. Oh him in the yeah, long I saw you run. mothering the patient. So do you feel that you need to give the patients confidence or you need? No, but just reinforce his belief that what Okay, he's doing is right. Okay, I felt. No, he was very sensitive. Like he almost kept getting tears in his eyes. And we were like asking him, like why he's and he Why? No, Yeah. that's what. What you are trying to do is building a relationship with that That's person. rapport, right? Trying to build a Yeah, conversation. rapport. No. The spiritual aspect of the disease which continues even after the drug use stops. And if you don't treat that aspect, there's a big chance of a relapse. So, but doesn't it come under the mental part? Mental part is the obsession part. The mental and the spiritual, I think, takes a long time. I wonder. How much time do you think Yeah, for that this was- is required? How much time do you feel is required? It depends. Yeah, it depends on Give a their number. willingness. 3 months. They can, after 3 months, they can come back to that again. None. A spiritual awakening takes only a moment. It doesn't take 10 days, 15 days, 3 months, lifetime, no. I am talking about is not at an intellectual level. What I am talking about is at a practice level. At a practice level, they feel, no, I want to be honest, and they practice it. There is not much hard work into it. Really, you think so? I know so. Maybe experience. The idea of having this conversation is that don't have any preconceived notions. What you are saying is also true. What I am saying is also true. And what they are saying is also true. If you have this approach towards your patients in the future, then you have a very successful practice and you have a BMW in your parking lot. Yeah, because psychologists charge a bomb. Okay, that's it for the day.
आदमी यहाँ सही रह सकते हैं, लेकिन बाहर की ज़िंदगी में नहीं बोल सकते कि यहाँ आपको थोड़ा सपोर्ट मिला, दवा मिली, तो हम यहाँ का बोल सकता है। यहाँ से बाहर जाने के बाद कोई नहीं बोल सकता, कौन क्या करेगा कोई बोल नहीं सकता। जब तक आदमी को सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। क्यों मालूम है, अभी यहाँ हमको मिल रहा नहीं तो हम देखो कितना अच्छे रहेंगे, सबसे बातचीत करें। बाहर के बाहर कोई कुछ नहीं वाला, सपोर्ट ऐसा क्या चाहिए? घर वाले बनता है, घर वाले ने भी साथ देना चाहिए, घर वाले भी हमको समझते नहीं। कब भूल गए? तो मतलब जब से नशा करने लगे तब से बस नशा ही भूल गए, भाई बहन भूल गए। एक बात याद रखो कि सुबह नशा कर लिया तो दोपहरों में आ जाएगा, और दोपहरों को लिया तो शाम को आ जाएगा, शाम को लिया तो सुबह में आ बस जाएगा। इसी में पूरा मैं और मेरा नशा यही जिंदगी हम लोग गुजारे। आज भी मेरे को देखो, मैं अभी बड़ी बात में 3 महीना पहला घर पे गया तो मेरे घर वाले मेरे को मतलब अंदर आने नहीं दे रहे कि उनको मालूम है ये रहेगा जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ करके जा रहा है। हमारी जो तकदीर है, एक बार दरवाजा खटखटाती है, बार बार नहीं खटखटाती, बराबर है। वो उसी तरह यही जो पॉइंट आपको आज जो मौका मिला है, उस मौके का सही इस्तेमाल करो। मैं मेरी जिंदगी के बारे में एक खास बताना चाहूँगा कि मैंने मेरी जिंदगी में एक बार एक कहानी सुनी थी। वो कहानी बाइबल से प्रेरित है, लेकिन वो कहानी का मतलब इतना सुंदर है ना, आप वो कहानी सुनो कि एक ऐसा एक गांव होता है, गांव में एक चर्च है, और चर्च में एक चर्च के दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ दिखाई देता है। फादर, चर्च का फादर जो होता है उसको दिखाई देता है। तो बच्चे को उठाता है, अंदर लेके जाता है और भगवान को बोलता है, हे भगवान, ये शायद तूने ही भेजा हुआ लड़का है, इसका कोई माँ बाप नहीं दिखाई देता है, मैं इसको बड़ा करूँगा। और तभी से उसका पालन पोषण शुरू करता है। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगता है। जिस तरह फादर भगवान की पूजा करता है, लोगों की शादियाँ करा के देता है, बाइबल पढ़ता है, अच्छी सलाह देता है, ये सभी बातें उसे कान पे पड़ती है, और वो भी अंदर से खुद को ये मानना शुरू करता है कि मैं भगवान का लड़का हूँ, भगवान ने मुझे अच्छे काम के लिए भेजा है। तो वो भी अच्छा काम करना शुरू करता है, भगवान का हर वक्त हर सेकंड नाम लेता है। धीरे धीरे वो जैसा बड़ा होता है तो वो जो चर्च का फादर है वो गुजर जाता है। तो गाँव वाले तय करते हैं कि आगे फादर का जो काम है वो भगवान ने भेजा हुआ जो लड़का है वो ही करेगा, और उसको ही हम लोग फादर बनाएंगे। वो बच्चा भी, वो जो जवान हुआ लड़का है वो अच्छी तरह से निभाता है जिम्मेदारी। वो फादर बनकर सबके लोगों को अच्छी सलाह देना, शादियाँ कराना, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ करता है। एक दिन क्या होता है कि गांव में बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ते रहता है, गांव वाले भागते भागते उसके पास आते हैं, बोलते हैं फादर चलो, नहीं तो अभी पानी बढ़ने वाला है, हम सब मर जाएंगे। तो बोलता है नहीं आप टेंशन मत लो, मैं भगवान का लड़का हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत करो। गाँव वाले चले जाते हैं। धीरे धीरे पानी बढ़ जाता है। वो फादर पहले दरवाजे पहले माने की जो गैलरी है, वो गैलरी में आके देखते रहते हैं पानी बढ़ रहा है। बाजू वाले गांव से एक बड़ी नाव आ जाती है, वो सामने रुक जाती है और बोलते हैं चलो फादर, गाँव वाले बोलते हैं चलो फादर, पानी और बढ़ने वाला है। तो बोलते हैं अरे अभी तक मैं जिंदा हूँ, मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरी चिंता मत करो, आप जा सकते हो। तो वो गाँव वाले भी चले जाते हैं। धीरे धीरे पानी और बढ़ने लगता है। दूसरे माले की गैलरी में आता है, एक नाव आती है, वो नाव में फिर से एक आदमी रहता है, वो बोलता है कि बाबा फादर चलो, तो फिर से बोलता है मेरा भगवान मेरे साथ है, मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसका मतलब मेरा भगवान मेरे साथ है, आप जा सकते हो। ऐसा करते करते चर्च के ऊपर जो लास्ट का क्रॉस रहता है ना ऊपर, वो क्रॉस को पकड़े हुए रहता है और भगवान को आवाज देते रहता है, भगवान मुझे बचाओ। तो एक नाव वाला फिर से आता है और बोलता है चलो फादर अभी तो चलो। बोला अरे अभी मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए आएगा, देखना मेरे भगवान के ऊपर मुझे विश्वास है, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हो। वो भी चला जाता है, पानी और बढ़ता है और फादर की मौत हो जाती है। आखिरी वक्त जब उसका हिसाब किताब होता है ना, कौन नरक में जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा, उस वक्त भगवान के सामने वो लड़का आता है और गालियाँ देना शुरू करता है, तू पापी है, तू दुष्ट है, आज तक एक भी एक ऐसा वक्त नहीं था, सेकंड नहीं था जिस वक्त मैंने तेरा नाम नहीं लिया। अच्छा काम करते करते मेरी जिंदगी गुजर रही थी और मेरा जब आखिरी वक्त आया, बुरा वक्त आया, तब मुझे तू साथ देने नहीं आया, तू पापी है, तू दुष्ट है, ऐसा बोल के भगवान को गालियाँ दे रहा। तो भगवान ने उसको बोला बेटा इस धरती पर सबसे प्यारा लड़का तू था,
मैं तेरी जान कैसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे को मदद करने के लिए 3 बार आया, लेकिन तू मदद को ना ही बोल रहा था। मैं क्या इसका मतलब, ये जो कहानी है इसका मतलब जानिए, ये जो कहानी है उसका मतलब जानिए। आपको हर वक्त कहीं ना कहीं से तो मदद मिल रही है, लेकिन आप मदद ले रहे हो क्या? आप उस ट्रीटमेंट को एक बार ले रहे हो, ट्रीटमेंट लेकर बाहर जाके वापस नशा कर रहे हो, तो हम लोग वापस वो बाढ़ में जाने वाले हैं भाई, वापस वो खड्डे में जाने वाले हैं। तो जब तक हम लोग वो, हमारे लिए अच्छा ही है समझो कि हमको बार बार ये मौका मिल रहा है। आगे किसने देखा है आगे मिलेगा नहीं मिलेगा? वो आगे नहीं मिलेगा उसका इंतजार क्यों करना? अभी मिला है उसका सही इस्तेमाल करो ना भाई। नशा छोड़ दो, बाहर की जिंदगी आपकी है, खुशियों से भर जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन एक बात है कि उसके अंदर अपना हमारा उतना विश्वास भी अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है कि मैं नशा नहीं करूंगा, ये मैंने तय किया है और आखिर तक साथ दूंगा। Some bright students from Ferguson College who had come to us, they gave us the idea to introduce art therapy in the program. So we've introduced different art therapies in the form of painting and मेकिंग पॉटरी। अभी ये अपन आर्ट थेरेपी क्यों कर रहे हैं मालूम है किसको? एक तो अपना मन लगने के लिए दूसरी चीज़ों पे, और दूसरा ये कि आर्ट करते हुए अपने को अच्छी भावनाएं आती हैं अंदर, उसके लिए अपन ये आर्ट बेस्ड थेरेपी चालू कर रहे हैं। और उससे ये भी है कि अपने को एक काम करने की लगन पैदा हो। या मॅडम आहेत, यांचं नाव आहे नम्रता मॅडम। तर या तुम्हाला बेसिक आता सगळं सांगतील कसं करायचं, काय करायचं। आपण यांची एक संस्था आहे आणि आपण ते त्यांना मदत करून तुम्हाला कसा फायदा होईल आणि तुम्हाला याच्यातून काय शिकायला मिळेल ह्या पॉइंटांचं घेऊन तुम्ही पुढे पण तुमच्या स्वतःसाठी फायदा करून घेऊ शकता। आता इथे पुढे बाहेर गेल्यानंतर लोकांना प्रश्न पडतो की आता मी काय करू, तुम्ही रिकामा झाला, तुम्ही याचा फायदा घेऊन आणि किंवा आम्हाला संस्थेमध्ये अजून काम करून म्हणू शकता की मी या प्रोजेक्टमध्ये काम करतो। याला प्रायमर हा जो आहे लिक्विड व्हाईट कलरमध्ये असतो आणि पण त्यांना पहिला बेस प्रायमरचा द्यावा लागतो, त्याशिवाय कुठलाही कलर प्रॉपर बसत नाही आणि ग्लोईंग होत नाही, चमकत नाही। तो 2 मिनिटात तुम्हाला पहिल्यांदा सोबत राहण्यासाठी लागतो आणि तुम्ही फ्रेश मूडमध्ये येता आणि जेव्हा तुम्ही फ्रेश होऊन बाहेर पडता तेव्हा तुम्ही पूर्ण सोबर असता, कुठलीही नशा नाही करत, तुम्हाला जग असं कॉन्फिडन्स आलेला असतो। पण तुम्ही ग्रुप थेरपीमधून आणि बाकीच्या थेरपीमधून केलेला असता, पण लोकांना सांगतो मी तशीपासून दूर आहे। आलं लक्षात? बेसिकली संतुलन इंद्रजीतमुळे कळलं। मी कनेक्टिंगची पण एक मेंबर होते तेव्हा आणि त्याच्या थ्रू त्यांनी मला सांगितलं की मी डिएडिक्शन सेंटर स्टार्ट करतोय। लास्ट कॅम्पमध्ये येऊ शकते नाही, पण आता हा कॅम्प नक्की करेन फुल विथ। आणि बेसिक आम्ही करतो की आम्ही केस हिस्ट्रीज घेतो आणि कॉग्निटिव्ह बिहेवियर थेरपी, कॉग्निटिव्ह रिस्ट्रक्चरिंग ज्याला म्हणतो आम्ही, ते आम्ही पेशंट्सवरती ट्राय करण्यासाठी आलेलो। एक्सपोजर जे संतुलन थ्रू मिळालं, नाहीतर जे लर्निंग एक्सपिरियन्सेस मिळाले, काही लोकांशी इंटरॅक्शन झालं, ते इतकं सुंदर होतं। आणखी दॅट वॉज सो नॉलेजेबल की पुढचं खूप खूप वर्ष त्याच्यावरती फक्त तेवढ्या नॉलेजवरती काढतात। The
संतुलन के होल एंड सोल ठीक है। तो आपको जाते जाते कुछ मार्गदर्शन करने के लिए मैं द्विजन सर को विनती करूंगा, कुछ उनको अनुभव के कुछ शब्द बताइए। नमस्ते दोस्तों, इतना बताया कि आज गेम खत्म हो रहा है, मैं ये नहीं शब्द वापरूंगा कि आज हम लोग नया जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। आप लोगों ने कई बार कोशिश की है नशे से दूर रहने की, ये एक और बार हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक शब्द है द्विज। आज आप सही मायने में द्विज बनने जा रहे हैं। द्विजन का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेते हैं। एंड दिस इज अ न्यू बॉर्न, ये नया जन्म है आपका। आप लोगों को यहाँ पे जो 15 दिन में बताया गया है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, उस प्रोग्राम को एक्शन में लाना है। नशे छोड़ना नहीं है, नशे से दूर रहना है, क्योंकि हम लोग कितनी बार नशे छोड़ने का प्रयत्न करते हैं उस बार छूटता नहीं है। और मेरा मानना है कि मैं मरेगा तब तक नशा अपने दिमाग में रहने वाला है। नशे ने दी हुई मजा हम भूल नहीं सकते, वी कैनॉट फॉरगेट। तो बहुत ही सिंपल है कि हमें नशे को छोड़ना नहीं है, एक एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहना है। और मेरे हिसाब से ये जो मंत्र है, 1 डे एट ए टाइम में आज का दिन नहीं पीऊंगा, इस गुरु मंत्र से करोड़ों लोग जिंदगी भर नशे से दूर रहते हैं। ये बहुत ही इजी है, एक दिन का हिसाब पालना है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी नशा नहीं करूँगा तो मेरे दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। आयुष्य भर नहीं पीनेगा, पूरी जिंदगी नहीं पीनेगा, हाँ एक टेंशन आ जाता है। नशे करने से पहले इसी में से कोई भी बंदा मेरे को रात को, मेरा दोनों फोन चालू रहता है, मैं कभी भी स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। नशा करने से पहले मुझे और इंद्रजीत को कभी भी या मुझको कोई भी फोन करेगा, हम बात करेंगे, उसको मदद करेंगे। नशा करने के बाद रात को फोन करेगा कि अब मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा आज का दिन पी ले, क्योंकि मैं वो उसका कोई मतलब नहीं है। मदद मांगने से मिलेगी। बॉम्बे में रहोगे तो बॉम्बे में हमारा दोस्त है रिजवान, हमारे मेंबर लोग बहुत है मदद करने वाले। नशा करने के लिए मदद कोई नहीं करेगा, नशे से दूर रहने के लिए मदद सब करेंगे और मिलती है। और धन्यवाद करेंगे फर्ग्यूसन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स का, जो हमारे व्यसन के ऊपर अभ्यास करने आए थे, उनकी हमें बहुत सारी सहायता मिली। उनके लिए भी एक बार सोने ना भाई, अभी सोने का वक्त नहीं, अभी जगने का वक्त। ओके, यहाँ पे जब आए थे डे 1 पहले दिन में, वो रोड पे से आए थे ना अंदर, तो वो पहला दिन और वो आज का दिन, इसमें काफ़ी कुछ हुआ है आपके ज़िंदगी में, आपके अंदर, आपके दिमाग में। जो भी कुछ आपने सीखा है, जैसे द्विजेंद्र सर ने बताया या मेरे फ्रेंड डॉक्टर आतिश ने बताया, वैसे आपको वो प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसलिए हाँ बताऊँगा कि यहाँ पे आपने क्या सीखा, बताओ दिन में। नशे वाले दोस्तों से, वो दोस्त नहीं होते, हाँ दोस्त लोग कोई भी अगर आपको बताए चल दारू के देर चले आने की बात है, वो दोस्त नहीं होता है। कोई भी दोस्त आपका कुछ ये बोलेगा कि जो सचमुच का आपका दोस्त हो, तो आपको बोले कि कैसे दूर रहना है। और क्या सीखे? मीटिंग करना और खुद में बदलाव। तो ये बदलाव फैंटास्टिक। तो खुद में बदलाव कैसे लाओगे? ये तो शुरुआत करके दी हमने। 15 दिन यहाँ पे गए, जैसे डॉक्टर आतिश बोले, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। मतलब आपके ऊपर हमारा ध्यान था। आप बोलिएगा खाते हो या नहीं हो, आपके मूड में कुछ फर्क आता है क्या, आपकी नींद लगती है कि नहीं लगती।
गुस्सा कितना करते हो। यहाँ से बाहर जाने के बाद जैसे मैंने शुरू बताया कि वही माहौल रहेगा, वही चेहरे रहेंगे, वो आपकी तरफ ऐसे देखने वाले, हाँ कुछ आंखें सस्पिशियस शकी नज़रों से देखने वाले, तो उनको आपको ये बहुत बड़ा आपके ऊपर चैलेंज रहेगा कि आपके सामने आपके घर वाले हो या आपके आजू बाजू वाले हो, ये आप पे शक लेने ही वाले हैं, लेकिन आपका हौसला जो है वो बुलंद रखना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ, और ये सब चीज़ें आसान नहीं है। यहाँ से बाहर जाने के बाद बहुत सारे वो स्लिपरी टर्न आने वाले हैं, यही रास्ता कहीं तो यू टर्न मारने वाला है। इसलिए क्या करना है, आप जो इसमें बाहर पड़ोगे तो आप हर एक ऐसे 3 लोग या 4 लोग लोकेट करो, या फिर उनको 4 लोगों का नाम जहन में लाओ या लिख लो कि जो आपको कुछ हो जाए तो सपोर्ट करेंगे। तो 1 डे एट ए टाइम जो बताया वो तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन जैसे आपको कुछ इच्छा होती है तो उस वक्त में, जैसे बोलो 5 से 7, 6 या 7, 8 बजे तक, तो उस वक्त में किसी के साथ में आपने कुछ बातचीत की, वो आपको सपोर्ट मिला, उससे मिली, तो आप वहाँ से हट सकते हो। उतना आपका उस दिन का एडिक्शन टल जाता है। तो सपोर्ट जब भी चाहिए, इन दिक्कत से मान लेना। अगर मेडिसिन किसी को चालू है तो मेडिसिन बंद नहीं करनी है जब तक हम नहीं बता दें। और थर्ड थिंग कि आपको जो भी ये फ्रेंड्स बोले ना, आप उनमें जब आप जाइए, तोड़ना उनको तोड़ना नहीं है, सिर्फ उनमें जाइए, उनको आप काउंसिल करें, उनको बताओ कि मैं बाहर आ गया हूँ, मैं अभी अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। अगर सकारात्मक विचार आपके मन में हो तो आपका लाइफ भी सकारात्मक और पॉजिटिव होता है। सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव थिंकिंग ओनली। अगर मैं कहता अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा बनने वाला हूँ, इस जहाँ में जो मुझे मिलवाना है मैं मिलाऊंगा, ये बोल के छोड़ने से कुछ नहीं होना। उसके साथ में आपका एफर्ट्स वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं आप। तो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार के साथ में आपका प्रयत्न, प्रयास, एफर्ट्स, दैट विल गिव यू रिजल्ट। वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। समझ में आया? इसमें क्यों नहीं बोला आपको इंटरप्ट किया कि आपने प्रार्थना तो अच्छी तरह हुई, इसका मतलब भी समझ लो और वो इम्प्लीमेंट करो, तभी जाके आपको सक्सेस आ जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, और मिलेंगे सारे भरम, तेरी पर चल और वही से डर, ताकि हंसते हुए निकले गम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, याद आएंगे ये पल। During the course of the program, we also introduced them to an AIDS awareness program with our partners Wake Up Pune. They come in, they do the awareness program, they also do testing. Because an addict and an alcoholic is considered to be having high risk behavior. सुरक्षित संबंध एक हो गया, सुई सिरिंज दूसरा हो गया,
माँ से बेटे को हो गया। और चौथा खून, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूषित खून इस्तेमाल करने से। ये जो 4 तरीके बताए उससे ही HIV होता है और किसी वजह से HIV नहीं होता। एसिड की फैक्ट्री में काम करने से नहीं होता है, मच्छर काटने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता। ये कुछ पैम्पलेट दे रहे, उसमें HIV की बहुत सारी जानकारी है, तो आप वो ले सकते हैं। On the back, it has a list of testing centers. So we'll do testing here right now for anyone who wants to get tested. And if you want to get tested later, or you know someone else who wants to get tested, there's a list of places here. And there's more on our website. हालांकि नशा छोड़ने की इच्छा तेरे अंदर है, लेकिन मुझे अगर घर चलाना है तो मुझे नशा करना जरूरी है, ये तेरा दिमाग में चल रहा है ना। तो अगर हम लोग समझो ऐसा तुझे काम दे देंगे जिससे तेरा घर भी चले और तू जिंदगी भी अच्छी तरह से तेरी जिंदगी भी ठीक ठाक हो जाए, तो तू फिर से नशे के पास जा सकता है। तो यही एक आसान रास्ता है। दूसरी बात, हम लोग सपोर्ट करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लगेज काम रेडी है और तुझे लगेज काम पर लगा देंगे। पहला तू फिजिकली तैयार होना बहुत ज़रूरी है, शरीर तेरा जो है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो तुझे काम देने वाले हैं वो कोई ऐसा पटांग काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छी बातें, ये सभी चीज़ें आना ज़रूरी है। एक संस्था की तरफ से तू जाने वाला है तो इसका मतलब तेरे को और भी लोग अच्छी नज़र से देखेंगे। जब ये सब कुछ तेरे बारे में होने वाला है तो उसके लिए तेरा अंदर से इच्छा उतनी मजबूत होनी चाहिए, बराबर। ये हमारे ऊपर भी इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये जो हम मुझे बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं और इसके रास्ते पर चलूँगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरेगी, ठीक है। 1 बजे मिलते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ कुछ भी काम करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे। नशा नहीं करोगे? एकदम नहीं। हीरो लग रहा है ऐसे एकदम। ऐसे जवानी में आप काफ़ी हैंडसम रहे होंगे। अरे वाह यार, 4 गर्लफ्रेंड लेके घूमता था एक साथ। कोई कमी नहीं दी, अल्लाह ने सब कुछ दिया था यार, बाकी नशे ने सब बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ, अभी और भी बात है। जल गया घर तो अब जीने के लिए रखा ही क्या है। अरे बच गया मैं तो अब जला ही क्या है, फिर बना लूँ।